Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. This is Mansi Thakur, your English mentor, and today we are going to solve the textbook exercise of chapter number 4, right? That is Thimka. So, first section, let's understand. Choose the correct answer, exercise 1, right? Let's begin. Thimka felt lonely because she and her husband did not have children. Even when the road was made bigger, the trees were not cut down because Thimka and Chika had smartly planted them away from the road. When the trees grew, they created a natural umbrella against sunshine, right? Next exercise. Complete the following sentences. Thimka and her husband were unhappy because they were married for 25 years but had no children. The villagers made fun of Chika because he was childless. Thimka and Chika collected seeds of the peepal tree to grow new peepal trees. 45 years after planting, the trees looked beautiful. To show how much we love Thimka's work, we can plant more and more trees. Exercise 3. Answer the following questions. Why did Thimka and Chika plant trees on the Kudur Hulikal road? कुदूर हुलिकल का जो रोड है वहीं पे क्यों ये लोगों ने ट्रीज प्लांट किए? Thimka and Chika planted trees on the Kudur Hulikal road because all the villagers used this road and there were no trees. इन लोगों ने ये जो ट्रीज है वो कुदूर हुलिकल रोड पे क्यों प्लांट किए? क्योंकि सारे विलेजर्स थे वो आने जाने के लिए यही रोड यूज करते थे और यहाँ पे ही कोई ट्रीज नहीं थे. What is the one thing you must do after planting the sapling? After planting the sapling, you must make sure that they survive. एक सैपलिंग को प्लांट करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक सैपलिंग को जब आप प्लांट करते हो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वो सर्वाइव करे, मतलब उसकी उतनी केयर करनी है, राइट? Pick out the sentence in the story that shows Thimka's road became famous. The sentence is, people came to that road just to look at the row of trees Thimka had nurtured. अब हमें इस स्टोरी में से एक ऐसा सेंटेंस निकालना था जिससे हमें पता चले कि थीमका का जो रोड है, राइट, वो फेमस हो गया था. वो सेंटेंस कौन सा है? That sentence is, people came to that road just to look at the row of trees Thimka had nurtured. मतलब लोग स्पेशली उस रोड पे सिर्फ इसीलिए आते थे ताकि जो ट्रीज थिमका ने नर्चर किए हैं, ग्रो किए हैं, उन्हें देख सके. ये सेंटेंस आपको दिया है पेज 32 पे ऊपर ही सबसे फर्स्ट जो लाइन दी है उसी में दिया है, राइट? What does the story of Thimka teach us? The story of Thimka teaches us that we should plant more and more trees. Thimka की स्टोरी हमें क्या सिखाती है? तो Thimka की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए. What did Thimka and her husband do to protect the trees? Can you think of one more way? थीमका और उसके हस्बैंड ने क्या किया था अपने ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या आप और कोई रास्ता सोच सकते हो? The couple would spend all day on the roadside tending to the plants, watering them and shooing away the animals. Chika also built tree guards. अब ये लोग तो क्या करते थे कपल की, दोनों जो रोड के साइड्स पे जहाँ पे प्लांट्स थे वहाँ पे ही पूरा दिन रहते थे, पानी देते थे प्लांट्स को, और जो भी एनिमल्स आते थे उन्हें भगाते थे वहाँ से. और चीका ने तो ट्री गार्ड्स भी, मतलब ट्री के चारों तरफ जो जाली जैसा होता है वैसा बना दिया था ताकि कोई एनिमल्स ना आ सके. अब जो एक और वे आपको क्वेश्चन में दिया है, कैन यू थिंक ऑफ वन मोर वे? दैट यू हैव टू थिंक. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है लेट्स बिल्ड वर्ड्स. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? प्लूरल फॉर्म करना है
एस ऐड करके, ठीक है। सो हियर नॉट नेसेसरी कि हर जगह एस ऐड होगा, कहीं कहीं जगह ई एस भी ऐड होगा, राइट। सो लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। ओके, लॉस लॉसेस, मास masses, tax taxes, kiss kisses, fish fishes, ash ashes, bench benches, bush bushes, potato potatoes, fox foxes। लेट्स चेक आंसर्स। यस, सॉरी आपको es ऐड करना था, तो हमने हर एक में es ऐड करके उसे प्लूरल बनाया, राइट। Next, rewrite the following sentences using the underlined nouns in the plural। अब जो भी nouns यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, राइट, और ब्रैकेट में जो नंबर दिए हैं वो नंबर के साथ हमें सेंटेंस को रीराइट करना है, और उस नाउन को भी हमें प्लूरल में चेंज कर देना है। There is a box on the table. There are 4 boxes on the table। देखो ब्रैकेट में 4 दिया है, उसे भी यूज करना है, और बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, क्योंकि एक से ज्यादा हो रहे हैं। I got a watch on my birthday। सो ब्रैकेट में हमें दिया है कि 2, तो उसका हमें प्लूरल करना है। I got 2 watches on my birthday। Get me a glass from the kitchen। ब्रैकेट में 3 दिया है, so get me 3 glasses from the kitchen। Do you have a class on the 3rd floor? So here 4 is given. Do you have 4 classes on the 3rd floor? Right? Next, प्लीज गिव मी अ मैंगो। यहाँ पे डजन, डजन यानी कि क्या होता है, एक डजन मीन्स 12 पीसेस, तो ऑफकोर्स ये प्लूरल हो गया। सो प्लीज गिव मी अ डजन ऑफ मैंगोज। द स्कूल ओन्स अ बस। सो बस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट। सो द स्कूल ओन्स फ्लीट ऑफ बसेस। देयर इज अ चर्च इन द सिटी। सो हियर सेवरल इज गिवन। There are several churches in the city. I bought a dress for my birthday. So in the bracket 4 is given. So in the sentence I bought 4 dresses for my birthday. Okay, next exercise. Let's learn grammar. Page 35. In column B are some actions that the people mentioned in column A usually do. Match the people in column A with their actions in column B। यहाँ पे column A में हमारे कुछ helpers के names दिए हैं, right? And column B में जो वो काम करते हैं that is given. We have to match the correct helper with its respective work. So let us see. Goldsmith makes gold ornaments. Doctor treats the sick. Dentist attends to tooth problems. Teacher teaches students. Plumber repairs pipes. Magician performs magic. Actor acts in dramas, films, and so on. Now let's check out the answers. Yes, we are correct. Goldsmith makes gold ornaments. Doctor treats the sick. Dentist attends to the tooth problems. Teacher teaches students. Plumber repairs pipes. Magician performs magic. And actor acts in drama, films, and so on. Let's move ahead. Okay, exercise number 3. So, here सिंपल पास्ट टेंस की ये एक्सरसाइज है ना। सिंपल पास्ट टेंस में आपको कोई भी वर्ब का जब पास्ट फॉर्म करना हो तो कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हमें सिर्फ डी या ईडी लगाने की ही ज़रूरत पड़ती है, वर्ब्स, राइट। सो हियर वी हैव टू ऐड सूटेबल वर्ब्स, एप्रोप्रिएट वर्ब जो सेंटेंस में सूट करते हैं वो ऐड
करने हैं. सो माई आंट बेक्ड अ केक फॉर माई बर्थडे पार्टी. The swimmer dived into the pool from the platform. Mohan liked the cake my aunt had baked for my birthday. The lion roared at the tiny mouse. Ali opened the door for his sister. ठीक है, ये जो लास्ट है काउ ब्लैंक द रोप एंड द बेल रैंग, वो आपको उसका एप्रोप्रिएट वर्ब खुद से ढूंढना है. ठीक है. एंड एज वी ऑल हैव स्टडीड सिंपल पास्ट टेंस का आगे जो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, राइट, उसमें हमने ये स्टडी कर ही लिया है ऑलरेडी. सो इसीलिए ये जो एफ वाला सेंटेंस है द काउ वाला, दैट उसका एप्रोप्रिएट वर्ब आपको फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट पेज 36 पे Now next exercise is on page 36, exercise 4. Complete the text with the past form of the verbs given in brackets. Now इसमें क्या करना है, ऑलरेडी आपको verbs जो है वो ब्रैकेट में दिए गए हैं. सो आपको जस्ट उसका पास्ट टेंस कर देना है. सपोज लास्ट इवनिंग आई ब्लैंक फॉर अ वॉक ऑन द बीच. सो इन द ब्रैकेट ऑलरेडी आपको वर्ब गो दिया है, मीन्स आंसर दिया है, आपको सिर्फ उसको पास्ट टेंस करना है. सो गो का पास्ट टेंस होता है वेंट. सो आई वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच. आई सॉ सम वेंडर्स. सॉ क्यों है, क्योंकि ब्रैकेट में सी दिया है. दे डिस्प्लेड देयर वेयर्स ऑन द सैंड. Suddenly a ball came flying at me. I picked it up and looked around for the owner. I saw some boys looking around for something. I called them and gave them the ball. जो भी ये आंसर्स हैं, यू कैन सी कि ब्रैकेट में उसी के प्रेजेंट टेंस के फॉर्म दिए हैं जिसका हमने पास्ट टेंस किया है, राइट. नाउ लास्ट एक्सरसाइज, Exercise 6. Now as we all know कि simple future tense क्या होता है. Simple future tense यानी कि जो चीज़ होने वाली है, हुई नहीं है. Present यानी कि जो हो रही है, Past यानी कि जो हो चुकी है, and Future यानी कि जो अब होगी, right? So future tense में कोई भी हमको अगर वर्ब लिखना है तो सिंपली देखो इस टेबल में भी आगे विल या तो शैल, दोनों में से कोई भी ऐड कर दो, फिर और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. जैसे यहाँ पे देखो ये जो डार्क किया हुआ है ब्लैक से, दैट आर योर आंसर. जो आपकी बुक में जहाँ जहाँ ब्लैंक दिया है ना, वहाँ पे यू आर सपोज टू राइट दिस. सो इससे आपको ये जो भी वर्ब्स दिए हैं उसके सिंपल पास्ट और फ्यूचर दोनों पता चल जाएंगे. सो प्ले, प्लेड, विल या तो शैल, प्ले. विल या शैल बोथ आर द सेम, सो यू कैन यूज एनी वन, ठीक है. बट यहाँ पे वी विल राइट बोथ. राइट, रोट, विल, शैल, राइट. सी विल एंड शैल के बाद हमारा जो वर्ब है वो हम ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे. जैसे सिंपल प्रेजेंट में प्ले है तो फ्यूचर में भी हमने प्ले ही लिखा है. क्यों? क्योंकि आगे हमने विल या तो शैल ऐड किया हुआ है. सिमिलरली बाकी सारे वर्ब्स भी आप देख सकते हैं. क्लाइम, क्लाइम्ड, विल और शैल क्लाइम. स्विम, स्वैम, विल, शैल स्विम. राइड, रोड, विल और शैल राइड. ब्रिंग, ब्रॉट, विल और शैल ब्रिंग. सिंग, sang, विल और शैल सिंग. ईट, ate, विल या शैल ईट. सिट, sat, विल और शैल सिट. कम, came, विल और शैल come. Clear? So this was it for your textbook exercise of chapter number 4. And now along with this we are also going to understand chapter 2 from your textbook, जो poem है mice. ठीक है, it's very easy poem. So let's begin. This poem is written by Rose Philemon. I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces are small. They haven't any chins at all.
मतलब नॉर्मल केसेस में क्या होता है चिल्ड्रन, दैट पीपल डज नॉट लाइक माइस। माइस यानी कि माउस जो है उसका प्लूरल होता है माइस। सो नॉर्मल केसेस में लोगों को ये चूहे अच्छे नहीं लगते हैं, बट हमारी जो पोएटेस है उससे चूहे अच्छे लगते हैं। सो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये जो माइस है वो तो अच्छे होते हैं, नाइस होते हैं। लंबी लंबी उनकी टेल्स होती हैं, स्मॉल स्मॉल फेसेस होते हैं, एंड उनके पास चीन तो होती ही नहीं है। Their ears are pink, their teeth are white, they run about the house at night. और उनके ईयर्स पिंक कलर के होते हैं, उनके टीथ है वो वाइट कलर के होते हैं, और वो रात को ही घर में भागा भागी करते हैं। They nibble things they shouldn't touch. Nibble things यानी कि जो चीज़ थिंग्स उनको टच नहीं करनी चाहिए, राइट, वो टच भी करते हैं। एंड निबल यानी कि उसके छोटे छोटे बाइट्स लेते हैं, उसमें से थोड़ा सा खा के फिर उसे छोड़ देंगे। जो चीज़ें उनको टच नहीं करनी चाहिए उन्हीं पे वो लोग छोटे छोटे बाइट्स लेके फिर छोड़ देते हैं। एंड नो वन सीम्स टू लाइक दैम मच, और इसी की वजह से कोई उन्हें पसंद नहीं करता है। बट आई थिंक माइस आर रादर नाइस, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि माइस आर नाइस। I'll repeat the explanation once again. I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces small, they haven't chins at all. हमारी जो पोएटेस है उन्हें लगता है कि माइस आर नाइस। उनकी जो टेल्स हैं वो लॉन्ग होती हैं, छोटे छोटे फेसेस होते हैं, और उनके पास चिन्स तो होती ही नहीं है हमारे जैसे। और उनके जो ईयर्स है, देयर ईयर्स आर पिंक, देयर टीथ आर वाइट, दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट। उनके ईयर्स जो है वो पिंक होते हैं, उनके टीथ जो है वाइट होते हैं, और जब रात के टाइम पे सब सो गए होते हैं ना, तब वो घर में भागा भागी करते हैं। दे निबल थिंग्स दे शुडंट टच एंड नो वन सीम्स टू लाइक दैम मच। निबल यानी कि जो चीज़ें उनको टच नहीं करनी चाहिए वो चीज़ों में वो निबल यानी कि छोटे छोटे बाइट्स लेके छोड़ देते हैं, और इसी वजह से लोगों को वो पसंद नहीं होते। बट आई थिंक माइस आर रादर नाइस, फिर भी पोएटेस जो है उन्हें लगता है कि माइस आर नाइस। ठीक है, सो दिस वॉज इट द पोएम माइस। अभी वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के लिए आपका टास्क ये रहेगा कि आपको ये जो एक्सरसाइजेस हमने यहाँ पे सॉल्व की है, यू आर सपोज टू सॉल्व इट इन योर टेक्स्ट बुक, यही आपका होम लर्न रहेगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।